اور سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب میں اسمبلی کی تحلیل کے 90 روز کے اندر انتخابات کروائے جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے عدالت کا الیکشن کمیشن کو گورنر سے مشاورت کے بعد شیڈیول جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے، یقینی بنایا جائے الیکشن مقررہ وقت میں کروائے جائیں گے۔ تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ادارہ ہے، تحریری فیصلہ یہ جاری کیا گیا ہے۔ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ بالکل، پنجاب میں اسمبلی کی تحلیل کے 90 روز کے اندر انتخابات کرائے جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، عدالت کا الیکشن کمیشن کو گورنر سے مشاورت کے بعد شیڈیول جاری کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست منظور کر لی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ یقینی بنایا جائے الیکشن مقررہ وقت میں کروائے جائیں۔ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ادارہ ہے، انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں اسمبلی کے تحلیل کے 90 روز کے اندر انتخابات کرائے جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو گورنر سے مشاورت کے بعد شیڈیول جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ بالکل، تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، یقینی بنایا جائے الیکشن مقررہ وقت میں کروائے جائیں۔ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ادارہ ہے، انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ یہ تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل اسد عمر نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آئین سے انحراف ناممکن ہے۔ حکومت اپیل میں گئی تو نئی صورتحال پیدا ہوگی۔ الیکشن کمیشن پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کرے۔ سرکار وسائل نہیں دے گی تو الیکشن کمیشن کو معاملہ عدالت کے سامنے رکھنا ہوگا۔ ہماری تیاریاں مکمل، منگل سے ٹکٹوں کا اعلان شروع ہو جائے گا۔ اسد عمر کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ اعتماد تھا اور آج وہ فیصلے کے اندر نظر آیا کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ آئین سے انحراف نہیں ہونے دیں گی۔ جب ایک دفعہ کورٹ کے احکامات آ جائیں گے تو امید یہی ہے کہ کھلم کھلا بغاوت پر نہیں اترے گی حکومت، اور آئین کے مطابق جو کورٹ کے احکامات ہیں، جو آئین پابند کرتا ہے جن احکامات کو فالو کرنے کے، اس کو پورا کیا جائے گا۔ ابھی تک انہوں نے یہ پوزیشن نہیں لی ہے کہ یہ الیکشن ہونے نہیں چاہیے 90 دن کے اندر۔ اب اگر اپیل میں جاتے ہیں تو پھر ایک نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو بالکل ہی سراسر آئین سے انحراف ہوگا۔ تاریخ تو ان کو فوری طور پہ اعلان کر دینی چاہیے۔ مختلف وفاقی اور صوبائی اداروں سے اگر ان کو وہ مدد حاصل نہیں ہو سک رہی ہے تو وہ پھر کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں اپنی امداد کے لیے۔ ہماری آپ سمجھ لیں کہ بنیادی طور پر تیاری مکمل ہو گئی ہے، اور اگلے ہفتے سے میرے خیال میں پیر یا منگل سے ٹکٹ کی اناؤنسمنٹ بھی ہونی شروع ہو جائیں گی۔ ابھی تک تو کسی نے وہ اس کو چیلنج نہیں کیا ہے۔ اگر یہ انٹرا کورٹ اپیل کے اندر جاتے بھی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ کبھی بھی عدالت جو ہے وہ سٹے نہیں دے گی۔ وہ ہیئرنگ کے لیے ایڈمٹ بھی کر لیں گے تو وہ سٹے نہیں دیں گے۔ جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ تو اس کے بعد اب شروع کرنا ہی ہوگا۔ الیکشن کمیشن کو وہ پروسیس کی ابتدا کرنی ہوگی۔ پل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ یا سپریم کورٹ میں اپیل کا امکان موجود ہے۔ حکومتی اداروں نے الیکشن کی معاونت نہ کی تو پنجاب میں انتخابات کا انعقاد مشکل ہو سکتا ہے۔ وہ دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک اور امکان موجود ہے کہ اس فیصلے کے خلاف کوئی انٹرا کورٹ اپیل ہو یا پھر سپریم کورٹ میں اپیل ہو۔ دوسرا سوال ہوگا، وہ بھی بہت اہم ہوگا، کہ اس فیصلے کی انفورسیبلٹی، عمل درآمد۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، اگرچہ وہ بھی غیر معمولی فیصلہ تھا کہ اگلے دن انتخابات کرا دیے جائیں مقامی حکومتوں کے، اسلام آباد میں انفورس نہیں ہو سکا۔ حکومت کے تمام اداروں کو معاونت کرنی پڑے گی تو پھر الیکشن ہوں گے۔ لیکن اگر الیکشن کمیشن نے خود یہ محسوس کیا کہ اس کی کوئی معاونت نہیں کر رہا، پریکٹیکلی پیسے بھی اس کو جاری نہیں کر رہے، تو پھر صورتحال مختلف ہوگی۔ سپریم کورٹ بھی یہی ڈائریکشن دیتا ہے، تو میرے خیال میں اداروں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ سابق آرمی چیف کے اعتراف سے موجودہ حکومت کی قانونی حیثیت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ملک کو جلد انتخابات میں جانا ہوگا۔ سیاسی تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ زمان پاک لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔
31 अरब डॉलर के करीब जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी उसके ऊपर चले गए थे और हमारी रेमिटेंस जो है वो भी इतनी ही चली गई थी। सो एक बहुत इकॉनमी, चलती हुई इकॉनमी को उन्होंने कह दिया कि वो अच्छी नहीं चल रही और हुकूमत तब्दील कर दी गई। और उसके बाद अब हमें नहीं पता IMF से इनका मुआहदा होता है नहीं होता। हम पहले दिन से बता रहे थे कि इस हुकूमत की कोई जो है वो कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन अब साबिक़ आर्मी चीफ की तरफ से जो ये बातें सामने आई हैं, इससे इस हुकूमत की जो रही सही कसर थी वो भी ख़त्म हो गई है। इसकी लेजिटिमेसी बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है, ख़त्म हो गई है। और इसीलिए हम ये समझते हैं पाकिस्तान के बहरान का हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नए इंतखाबात। नून लीग के अंदर अब काफ़ी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। मैं समझता हूँ जो शाहिद खाकान नवासी ने, मिफ्ता इस्माइल ने और अब आके कैप्टन सफदर साहब ने जो बातें कही हैं इनमें वज़न है। और हमें सियासी जमातें जो हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से जो है वो आगे पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ उस पर बात करेंगी। हमें तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है, तलखियाँ कम करते हैं। पहले ये तो देखें जिसके ऊपर इतनी बड़ी अब कन्फेशंस आ गई हैं, इसके ऊपर देखते हैं अब क्या आगे बात चलती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि खुद इस्तीफे देने वाले ऐवान को इम्पोर्टेड कहते रहे, अब उसी पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम इमरान खान का दिया हुआ तोहफा है। इस मुआहदे से पीछे हटना मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात एबटाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। के पास हमारी कोalition हुकूमत नहीं जा रही, IMF के पास इमरान खान साहब गए थे और IMF के पास एक दफ़ा आप जाएं तो IMF के प्रोग्राम को जिसको उन्होंने सस्पेंड किया था आपने उसको कंक्लूड करना होता है। ये गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होती है। हम इंशाल्लाह हमने पहले भी कंक्लूड किया था IMF का प्रोग्राम। पूरी कोशिश करेंगे कि इस IMF के प्रोग्राम को कंक्लूड भी करें और इस कोशिश के साथ करें कि आवाम पे कम से कम बोझ हो। बात जो सामने आई है कि इन्होंने खुद इस्तीफे दिए थे, उस वक़्त ये भंगड़े डाल रहे थे। इस्तीफे देने के बाद आपको याद होगा कि ये वही लोग हैं जो हर बात पे यू टर्न लेते हैं। आपने एक पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दिया है, अपनी सीट पे इस्तीफ़ा दिया, उसके ऐलानात किए हैं, उसके बाद उस पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं, इसका भी तो जवाब देना। ये नहीं हो सकता कि आपकी मंशा के ऊपर पार्लियामेंट के भी ऑर्डर्स चले, आपकी मंशा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर चले, हाई कोर्ट के ऑर्डर चले और इलेक्शन कमीशन आपके मातहत नहीं है, वो आइन के मातहत है और वो उसके मुताबिक ही फैसले कर। वो मुशीर हैं, वो बग़ैर किसी तनख्वाह के काम कर रहे हैं। ये प्रो बोनो उन्होंने पहले ही दरख्वास्त की थी और आज प्राइम मिनिस्टर ने कल उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च की बजाय 19 मार्च को करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने PTI सेक्रेटरी जनरल असद उमर की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़िमनी इंतखाबात वाले दिन मुतल्लिका हलकों में 16 मार्च को मकामी छुट्टी दी जाएगी, जबकि कमीशन मुतल्लिका सूबों को इन हलकों में मकामी छुट्टी के लिए ख़त लिखेगा। जवाब में कहा गया इलेक्शन कमीशन 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात कराने का पाबंद है। 19 मार्च को इलेक्शन कराने से आईनी खिलाफ वर्जी होगी। हुकूमत ने 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का इंदिया दे दिया है। वजीर खजाना इसहाक डार ने IMF को तमाम अहदाफ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी है। उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाई जाएगी, बिजली की अनटारगेटेड सब्सिडी खत्म और सेल्स की मद में नए टैक्स लगाए जाएंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। हुकूमत का 170 अरब रुपए के टैक्सेस नाफिज करने का फैसला, तवानाई के शोबे में अनटारगेटेड सब्सिडी खत्म, गैस शोबे का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह बढ़ाई जाएगी। IMF मुज़ाकरात के बाद वजीर खजाना की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। बिजली की पैदावार 3000 अरब और रिकवरी सिर्फ 1800 अरब रुपए की होती है। गुज़िश्ता 5 बरसों में कर्जे 70% बढ़े, महंगाई बढ़ी और माशी तबाही आई। सबसे पहले तो यह है कि इस पॉलिसी जो पैकेज है इसमें 170 अरब के जो फिस्कल मेजर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे। इसी तरह जो हमारा पेट्रोलियम सेक्टर है उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ़्लो को हमने ज़ीरो करना है जी, और वो जो फ़्लो है वो आइंदा ताकि उसमें वो मज़ीद ऐड ना हो। This is one of the understanding and agreement. वज़ीर खजाना ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 40 अरब की ग्रांट बढ़ाने का ऐलान किया, मगर मिनी बजट की सूरत में महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई प्लान ना दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया, हुकूमत IMF से मुआहदे की शराइत बताने को तैयार नहीं, हुकूमत अवाम पर महंगाई का बॉम्ब गिराने लगी है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। डिस्कशंस तो मुकम्मल हो गई और IMF का वफ्द यहाँ से रवाना हो गया,
लेकिन कौम को नवीद नहीं सुनाई गई कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आप मुआहदा करने जा रहे हैं, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को जब आप लागू करेंगे तो आवाम पर उसका क्या असर पड़ेगा। लोग इस वक्त इस हुकूमत की, मुस्लिम लीग की, इस नाकाम हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। न ये मईशत को संभाल सके, न ये महंगाई कंट्रोल कर सके, न ये सनत का पहिया चला सके, न ये बेरोजगारी का जो एक नया तूफान बर्पा हो रहा है उसको थामने के लिए इनके पास कोई हिकमत अमली है। और इन 9 महीनों में इनकी कारकर्दगी आवाम के सामने आ चुकी है। और IMF ने पाकिस्तान के साथ नवे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया है। एलामिये में माली इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल रेवेन्यू इकदामात, सब्सिडीज में कमी को तरजीहात करार दिया गया है। IMF ने वज़ीर आज़म की जानिब से पॉलिसीज पर अमल दरामद के लिए आज़म का खैर मकतब भी किया है। उसूल IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरा, IMF की जानिब से एलामिया जारी। IMF मिशन तामीरी मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी हुक्काम का शुक्रगुजार। एलामिया में IMF का वज़ीर आज़म की जानिब से पॉलिसीज पर अमल दरामद के अज़्म का खैर मकदम। मुज़ाकरात में बैरूनी नाहमवारियाँ दूर करने पर काबिल ज़िक्र बातचीत हुई। मुस्तकिल रेवेन्यू हुसूल के इक़दामात, नॉन टारगेटेड सब्सिडी में कमी, गरीब तबके और सैलाब मुतासरीन की मदद पर भी बात हुई। पॉलिसीज पर अमल दरामद के लिए तफसीलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। एलामिया में कहा गया है कि फैसला कुन पॉलिसीज पर बर वक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा। वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पायदार तरक्की के लिए सरकारी शराकतदारों से माली मदद पाकिस्तान के लिए जरूरी है। गरीब तरीन तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने के साथ गर्दिशी कर्ज में कमी करके तवानाई के शोबे में अमलदारी यकीनी बनाने पर बातचीत की गई। IMF मिशन चीफ ने कहा है पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त हुई। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात और लेबर फोर्स में ख़वातीन की शमूलियत के बगैर पाकिस्तानी मईशत तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान का बुनियादी मसला सरमायाकारी और बरामदात की बजाय निजी और हुकूमती अखराजात पर इन्हिसार करना है। पाकिस्तान की मईशत नाजुक मरहले पर पायदार तरक्की के लिए अदम तवाज़ुन के देरीना मसले का हल जरूरी। माली वसाइल की तकसीम में खराबियां दूर करना भी नागुज़ीर। आलमी बैंक ने कर दिया खबरदार। वर्ल्ड बैंक ने हालिया रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान को सालाना 6 से 8% मौशी तरक्की की जरूरत है, जबकि वसाइल के एतबार से पैदावार का ना होना मुल्क की तरक्की में रुकावट है। तमाम शोबों में टैक्सों को हम-आहंग करने से ही मईशत में बेहतरी आ सकती है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि रियल एस्टेट के शोबे के बजाय मैन्युफैक्चरिंग और तिजारती शोबे को बेहतर किया जाए। तिजारती पॉलिसी से बरामदी शोबों में बरामद मुखालिफ रवैयों को खत्म किया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में 22% खवातीन मुलाजमत करती हैं। इस शरह को बढ़ाने से तरक्की में अहम पेशरफ्त हो सकती है और GDP की शरह 23% तक बढ़ सकती है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जनरल सेल्स टैक्स को हम आहंग करना और बैरूनी सरमायाकारी के मौके पैदा करना जरूरी है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में पाकिस्तान में फीकस खाम कौमी पैदावार की शरह कम रही। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि पाकिस्तान से रोजाना की बुनियाद पर $4 करोड़ गैर कानूनी तौर पर बाहर जा रहे हैं। हुकूमत फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग पर काबू पा ले तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा कि करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ मुनाजिम इकदाम करने होंगे। फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग रोकने से सूरत हाल बेहतर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपर टैक्स के नफाज के खिलाफ तमाम मुकदमात को यकजा करके समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने ड्रग प्राइसिंग कमेटी की सिफारिश पर 20 अद्वियात की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी है। 18 नई अद्वियात की कीमतों का तयन भी कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी ने पैरासिटामोल वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली मंसूबों के लिए लिए गए कर्ज पर सूद की 76 अरब रुपए रकम भी अब अवाम अदा करेंगे। ECC ने बिजली सार्फिन पर ₹1 फी यूनिट सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे दी। 300 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर सरचार्ज लागू होगा। बिजली बिलों पर फाइनेंस सरचार्ज रवां साल मार्च से जून तक लागू
रहे गा। ECC ने IMF की हिदायत की रोशनी में नजर सानी शुदा सर्कुलर डेट प्लान की मंजूरी भी दे दी। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। मुल्क में महंगाई में इजाफे का रुझान जारी है। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 34.83% हो गई। एक हफ्ते के दौरान चिकन, दालें, घी, लहसुन, आलू, LPG समेत 29 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। मुल्क में महंगाई के वार जारी, बेकाबू गिरानी जेबों पर मजीद भारी पड़ने लगी। सालाना बुनियादों पर गिरानी की शरह 34.83% तक पहुंच गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने एदाद और शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते के दौरान चिकन, दालें, घी समेत 29 अशियाई जरूरिया मजीद महंगी हो गई। जिंदा मुर्गी 27 रुपए इजाफे से 415 रुपए फी किलो हो गई। घी 29 रुपए महंगा होकर 548 रुपए फी किलो पर जा पहुंचा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 104 रुपए बढ़कर 3500 रुपए हो गई। दाल माश की कीमत में 9 रुपए फी किलो, जबकि दाल चना की कीमत में 4 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान आलू 4 रुपए फी किलो महंगे हो गए। लहसुन की कीमत भी बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान प्याज, टमाटर, चीनी समेत 5 अशियाए जरूरिया सस्ती हुई, जबकि 17 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शेख रशीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त पर समाअत 13 फरवरी को होगी। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। तीसरे फरीक की शिकायत पर मुकदमा बना, जेल में हूँ, अब मजीद किसी तफ्तीश के लिए पुलिस को मेरी ज़रूरत नहीं, मशल के जमा करवाने पर तैयार हूँ, जमानत मंजूर की जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI इमरान खान के 15 फरवरी के समन जारी कर दिए, जबकि तोशाखाना रेफरेंस में बने मुकदमे में सेशन कोर्ट ने इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। हमारे सरकार में मुदाखलत का केस। जमान पार्क की एक वीडियो में इमरान खान को चलते फिरते देखा। 15 फरवरी को पेश हो, ना आए तो जमानत पर फैसला दे देंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के रिमार्क्स। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने संज्ञानी में दर्ज केस में इमरान खान की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत की। जज का कहना था कि इमरान खान की जमान पार्क से एक वीडियो जारी हुई है जिसमें पैदल चलते नजर आए। इमरान खान 15 फरवरी को आए या ना आए, हम जमानत पर फैसला दे देंगे। दूसरी जानिब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान के वकील बाबर अवान से इस्तफसार किया कि आपने लिखा कि 20-25 रोज लगेंगे। मुद्दई मुकदमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने पिम्स का बोर्ड बनाने की इस्तदा की और कहा कि इनको नहीं लगता कि ये प्लस्तर अगले 6 माह भी उतरेगा। बाबर अवान का कहना था कि प्लस्तर दुनिया का लंबा तरीन प्लस्तर है, लेकिन 1.5 साल की प्लेलेट्स से लंबा नहीं। ना ही 50 रुपए के बयाने हल्फी पर वो कहीं काफी शॉप या बर्गर शॉप पर मेफेयर में फिर रहे हैं। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना था कि जेल भरो तहरीक चलाई जा रही है, लेकिन इमरान खान खुद पेश नहीं हो रहे। इमरान खान साहब ने एक दरखास्त दी और उन्होंने ये कहा कि जो प्लस्तर उनके टांग पे चढ़ा हुआ है, उस प्लस्तर की वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। वो ये कहते हैं कि जेल भरो तहरीक का आगाज करेंगे। जो शख्स कहता है कि मैं जेल में जाऊंगा, मैं जेल से नहीं डरता, तो वो अदालत में तो पेश हो अपनी बुरी जमानत में। समाअत के दौरान वकील बाबर अवान ने पेशकश की कि इमरान खान की हाजिरी वीडियो लिंक के जरिए हो सकती है। ताहम एडिशनल सेशन जज ने रिमार्क्स दिए कि जमानत कबल गिरफ्तारी के केस में ऐसा नहीं होता। अदालत ने तिब्बी मुआयना पिम्स डॉक्टर से कराने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इमरान खान को तहरीरी बयान जमा कराने की हिदायत कर दी। और नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने इमरान खान और PTI के कंडक्ट पर अहम सवाल उठाए। कहा कि इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तनाब करने वाले का अदालत में हक दावा बनता है? देखते हैं ये रिपोर्ट। कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या कोई रुकने असेंबली पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है? क्या अवामी एतमाद के अमीन का पार्लियामेंट का बाइकआउट करना दुरुस्त है? क्या कानून साजी के वक्त बाइकआउट करना फिर अदालत आ जाना पार्लिमानी जमहूरियत को कमजोर करना नहीं? अवामी मफाद का तयन क्या अदालत में बैठे 3 जजेस ने करना है? नैब तरामीम कौन से बुनियादी हकूक से मुतसादिम है? निशानदही नहीं की गई।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सिर्फ इस बुनियाद पर अवामी वफाद का मुकदमा ना सुने कि दरख्वास्त गुजार का कंडक्ट दुरुस्त नहीं। हर लीडर अपने इकदामात को दुरुस्त कहने के लिए आइन का सहारा लेता है। पार्लियामान का बाइकआउट करना PTI की सियासी हिकमत अमली थी। जरूरी नहीं सियासी हिकमत अमली का कोई कानूनी जवाब भी हो। बाज़ औक़ात कानूनी हिकमत अमली भी सियासी लिहाज से बेवकूफ़ी लगती है। पार्लियामानी कार्रवाई का बाइकआउट दुनिया भर में होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, अदालत सिर्फ बुनियादी हकूक और आईनी हदूद पार करने के नुकात का जायजा ले रही है। इमरान खान के कंडक्ट पर सवाल तब उठता अगर नैब तरामीम से उनका कोई जाती फायदा होता। चीफ जस्टिस ने कहा कि शायद इमरान खान को मालूम था कि वो पार्लियामेंट में कामयाब नहीं हो सकते, तो अदालत आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अगर नैब कानून का लदम करार दिया गया तो कल कोई भी सुप्रीम कोर्ट में कानून साजी चैलेंज कर देगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक के लिए 4 लाख कारकुनों की गिरफ्तारियों का टास्क दे दिया। PTI के कारकुन अपने कायद की कॉल पर लब्बैक किस तरह कहेंगे, इसके जवाब का तो सभी को इंतजार है, मगर इससे पहले एक जायजा लेते हैं जेल भरो तहरीक है क्या। खित्ते में ऐसी तहरीकें कब कब चली, किस तरह के अंजाम को पहुंची और क्या नताइज हासिल कर सकी, देखते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच की ये खुसूसी रिपोर्ट। आज सबको कहता हूं कि तैयारी कर लें, हमने जेल भरो तहरीक करनी है। इमरान खान की जेल भरो तहरीक किस अंजाम से दो चार होगी, इसके लिए तो करना होगा वक्त का इंतजार, मगर इससे कबल ये जरूर जांचा जा सकता है कि जेल भरो तहरीक है क्या और अब तक चलाई गई ऐसी तहरीकें क्या नताइज दे सकी। जेल भरो तहरीक को मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को दबाव में लाने का एक हरबा कहा जा सकता है, जिसका मकसद रजाकाराना गिरफ्तारियों के जरिए अपनी अवामी मकबूलियत साबित करना भी है, तो साथ ही ऐसी सियासी जमात या ग्रोह का तासुर कायम करना भी जिसके लिए अवाम हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हों। हदफ होता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जेलों में जमा करना कि रियासत के लिए इन जिंदानों का इंतजाम संभालना मुश्किल हो जाए। बर्रे सगीर में गिरफ्तारियों को सियासी हरबे और हुकूमत पर दबाव के लिए इस्तेमाल की रिवायत क़याम पाकिस्तान से कबल की है। बर्रे सगीर में सबसे पहले कांग्रेस के रहनुमा मोहनदास गांधी ने सिविल नाफरमानी और हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक में जान डालने के लिए इज्तमाई गिरफ्तारियों का तरीकाकार अपनाया। इस तहरीक में 60,000 से जायद अफराद गिरफ्तार हुए, जिनकी अक्सरियत बगैर किसी मुकदमे के तकसीम हिंद तक कैद रही। यूं ये तहरीक फौरी तौर पर अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रही। 1947 में मुस्लिम लीग ने खिजर हयात टवाना की यूनियनिस्ट वजारत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की, जिस दौरान एहतजाज को मुअस्सर बनाने के लिए अज खुद गिरफ्तारी की मुहिम चलाई गई। पुलिस इन मुस्लिम लीगी रजाकारों को गिरफ्तार करके शहर से दूर छोड़ दिया करती थी। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद बड़ी तादाद में जेल भरो तहरीकें चली। जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ PNA की तहरीक की इब्तदा भी रजाकाराना गिरफ्तारियां पेश करने से हुई। ये जुड़ी होती हैं तहरीकें सिविल नाफरमानी के साथ। कोई कानून होता है, आप उसे तोड़ते हैं, दफा 144 लगी, आप उसको वायलेट करेंगे, कभी पकड़ो। भुट्टो साहब के दौर में भी लोगों ने गिरफ्तारियां दी। कानून शिकनी के साथ जुड़ी हुई तहरीक है, इसको सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक भी कहते हैं। पाकिस्तान में किसी हद तक अगर कोई ऐसी तहरीक मिलती है जिसमें जेलें भरने की कामयाब कोशिश हुई, तो वो तहरीक बहाली जमहूरियत, जो MRD के नाम से मारूफ है, कही जा सकती है, जिस दौरान मार्शल लॉ के खात्मे और जमहूरियत की बहाली की मुजाहमती जद्दोजहद में शिद्दत लाने के लिए जेल भरो तहरीक शुरू की गई। ज़ियाउल हक के खिलाफ 1981 में शुरू होने वाली MRD की तहरीक का ज्यादा जोर सूबा सिंध में था, जबकि पंजाब की शमूलियत न होने के बराबर थी। MRD के प्लेटफॉर्म से रजाकाराना गिरफ्तारियों की इस तहरीक में तकरीबन 15,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अक्सर जेलों में गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा कैदी हो गए। असीरान में वकील, सियासी रहनुमा और कारकुनों के अलावा हर मकतबा फिक्र के लोग शामिल थे, जिसने हुकूमती ऐवानों में हलचल मचा दी। 1986 में MRD के प्लेटफॉर्म से ज़िया हुकूमत के खिलाफ दूसरी मर्तबा जेल भरो तहरीक शुरू हुई, जिसे कोड़ों और तशद्दुद से दबाया गया। ये तहरीक ज़ियाउल हक के इक़्तिदार के खात्मे में तो नाकाम रही, मगर इस आमराना दौर को अवामी तौर पर गैर मकबूल जरूर कर गई। 1994 में महाजर कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से जेल भरो तहरीक का आगाज किया गया,
جس میں بنیادی مطالبہ کراچی میں پارٹی کے خلاف آپریشن کو ختم کیا جانا تھا۔ 18 نومبر 2004 کو جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے وارننگ دی کہ اگر حکومت نے ان کی جماعت کی 28 نومبر کی مشرف کی وردی نہ اتارنے کے اعلان کے خلاف ریلی میں رکاوٹ ڈالی تو جیل بھرو تحریک شروع کر دی جائے گی۔ 6 نومبر 2007 کو خیبر پختونخوا کے وکیلوں نے ملک میں ایمرجنسی کے خاتمے اور آئین اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کے لیے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا۔ 13 نومبر 2007 کو پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کی جانب سے ایمرجنسی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی نظر بندی کے خلاف احتجاج کیا۔ پولیس نے سیاسی جماعتوں کے 100 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا، جس پر پیپلز پارٹی نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا۔ 15 جنوری 2018 کو تحریک لبیک کے مولانا اشرف جلالی نے مطالبات کی منظوری کے لیے 27 جنوری 2018 سے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا۔ ان کے مطالبات تھے کہ رانا ثناء اللہ استعفیٰ دیں اور تحریک کے کارکنوں کا ازالہ کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان بھی اس سے قبل 8 اکتوبر 2022 کو میاں والی کے جلسے میں پارٹی کارکنوں کو دھمکیوں کے خلاف جیل بھرو تحریک چلانے کا اعلان کر چکے ہیں، جس کو بعد ازاں بغیر کسی عمل درآمد کے بھلا دیا گیا۔ اور اب 4 فروری کو عمران خان نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کے خلاف جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا، پھر اسے 90 روز میں اسمبلیوں کے الیکشن سے مشروط کر دیا، جس کا نتیجہ ابھی باقی جبکہ غلغلہ کافی زیادہ ہے۔ کیا تحریک انصاف لاکھوں کارکنوں کی گرفتاریاں پیش کرنے میں کامیاب رہے گی؟ تحریک انصاف کی ایک ٹھیک ہے بہت بڑی فالوئنگ ضرور ہے، لیکن کیا ایسے لوگوں کی تعداد موجود ہے جو اس کا اگر یہ کوئی تحریک اس قسم کی ہوتی ہے تو آپ کو ہزاروں میں جو ہے آپ کو والنٹیئرس چاہیے ہوتے ہیں، تو کیا آپ کو والنٹیئرس مل جائیں گے؟ دوسری جانب عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، سڑکوں پر بھی نہیں نکلیں گے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا کارکن گرفتاریوں کے لیے خود تھانوں میں پیش ہوں گے؟ اگر خود پیش ہوں گے تو گرفتار کس جرم میں ہوں گے؟ کیا ملکی قانون بلا جرم رضاکارانہ گرفتاریوں کی اجازت دیتا ہے؟ اگر گورنمنٹ 144 نہیں لگاتی ہے شہر میں، یہ مظاہرے کرتے رہے اپنے شہر میں، انہیں گرفتاری نہیں کرے گا کوئی۔ اگر گرفتاری کی تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا رسپانس کیا ہے پبلک کا۔ اگر وہ اور اوور ویلمنگلی اس کے سپورٹ میں آتے ہیں تو پھر گرفتاری، ویسے ہی جیل میں جگہ نہیں ہے، کہاں رکھیں گے؟ تھانوں میں کہاں اتنی جگہ ہے؟ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کا کمال یہ بھی ہے کہ وہ ماضی کی سیاسی ناکامیوں کو بھلا کر نہایت اطمینان سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جیل بھرو تحریک بھی سول نافرمانی کی تحریک کی طرح کا سیاسی اعلان ثابت ہو۔ جیل بھرو تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں؟ اس سے قبل یہ سوال زیادہ اہم اور دلچسپ ہے کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز بھی ہو سکے گا یا نہیں۔ کچھ سیاسی پنڈتوں کے خیال میں حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اعلان کردہ یہ تحریک خود تحریک انصاف کے لیے درد سر نظر آتی ہے کہ اس کا کامیاب آغاز کب اور کیسے کرنا ہے۔ کیمرامین خالد گردیزی کے ساتھ عدیل وڑائچ، دنیا نیوز، اسلام آباد۔